नमस्ते, हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं जो बोल रहा हूँ, आज की तारीख है 12 जुलाई, लेकिन आप तक ये पहुँचेगा 19 जुलाई को शाम को 6 बजे। इस बीच पहले से ही रिकॉर्डेड अपकमिंग लिस्टिंग हैं और बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे हैं। तो कुछ कहने के पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आप लोग इतना डिमांडिंग हैं कि कभी आ जा रहा है मेरे पास कि ICMR और आयुर्वेद की भूमिका पर बोलिए, कभी आ रहा है कि नहीं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पर बोलिए, कभी लोग पूछ दे रहे हैं कि नहीं पेटेंट के ऊपर बात करिए, फिर कभी कोई कुछ कह दे रहा है कि नहीं क्लिनिकल और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कैसे आयुर्वेद के लिए क्या लागू है उस पर बात करिए। तो तमाम अब मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ी है, अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। आज मैंने थोड़ा सा स्पेशल विशेष रूप से एक अलग मुद्दा उठाने की कोशिश की, क्योंकि ये पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र में विशेषता और पूरे देश में सार्वजनिक रूप से बहुत ही चर्चा में है। What happened in the district of Satara day before yesterday? One family prepared some kind of decoction. No one is knowing what are the purpose of the preparing that kind of decoction. What were the ingredients of decoction? In what amount they have taken? When they have taken? And why they have taken? Unfortunately, out of 4, father and son are no more. Son was a bank employee from Pune and visited house in Satara in holiday. Lokmat, the very strong newspaper of the Maharashtra, given a very heading of the yellow journalism. Then again the next day Times of India is given to die after taking Ayurvedic decoction. These kind of titles of news of leading newspaper are really misleading and detracting the society from Ayurveda. And this is the best examples of the yellow journalism, where you are focusing by heading which is not the cause. If you go to the statement of the police inspector of the Satara, he is also not making a very statement like this, what the newspaper is publishing. He quoted that the viscerals are preserved and the postmortem, we are waiting for the postmortem report. But these 2 newspapers and the 2 correspondents and their local editors, the Lokmat and the Times of India, concluded with their best scientific knowledge, their best medical knowledge, that both they die due to the taking of the Ayurvedic kadha. I don't know. Viscera is not till date examined, analyzed. But these two newspapers have concluded. They did the media trial, and the media trial judgment is that Ayurveda is culprit. They died because they have taken the Ayurveda decoction. What is this? Why they are doing like this continuously? At one point,
without showing any seriousness, these are publishing anything of any writer. These 5 recipes, 7 recipe, and this that for your all diseases and disorders, without authenticating even the credential of author or those what they are publishing at that content. And here they have completed their media trial, and within 12 hours the heading is they died due to the intake of the Ayurvedic decoction. Is it judicious? Is it justified? Whether they are doing good journalism? It is the best example of the yellow journalism or the bad journalism. Anyhow, but there is another surface of the coin. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. पहला तो ये जो मैंने अभी एड्रेस किया. दूसरे पे बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है. ये जो हमारा भारतीय जनमानस है, ये जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन साइकी की पॉपुलेशन की साइकी है, ये हर जगह क्यों अति करने लगती है. आपने देखा पेंडेमिक कोविड में लोगों ने इतना काढ़ा पिया कि लोगों को पता नहीं क्या क्या बीमारियां हुई. किसी को अल्सर हुआ, किसी को पाइल्स तक हुआ, किसी का लीवर में भी डैमेज हुआ. तो ये सारा का सारा जो हो जाता है, तो हिंदी में कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत. तो अधिक से अधिक दवा लेने से कोई ठीक थोड़े ना हो जाएगा, या अधिक से अधिक काढ़ा पी लेने से तो ठीक थोड़े ना हो जाएगा. आपको रोज एंटीबायोटिक 5 दिन खानी है तो सारी एंटीबायोटिक एक दिन खा लेंगे तो ठीक थोड़े ना हो जाएंगे, वो तो और उल्टा असर करेगा. लेकिन पता नहीं यहाँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है और इसका हम बहुत विरोध करते हैं कि आयुर्वेदा मीन्स सेफ, नेचुरल मीन्स सेफ. Whatever you are doing in the name of Ayurveda and the nature, it is the safe. No, it is not. And therefore, here is the need of the program of the pharmacovigilance, and which is doing all its assigned duties. अरे आप 6 लीटर पानी पी लीजिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. तो क्या काढ़ा आप 2-2 गिलास पी लेंगे एक बार में तो आप ठीक हो जाएंगे? ये कौन सी आपकी सोच है भाई? ये क्या सोच लिया आपने? और फिर आप तो करते हैं अपनी मर्जी. मेरा मतलब है आम जनता. किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की आप सलाह नहीं लेंगे. आप स्वयं में निष्णात वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, और फिर आप कुछ भी बना के, कुछ भी डाल के, कुछ भी पिएंगे और कितना भी पिएंगे, और आपकी कुछ हानि होती है तो पूरा सिस्टम, हम जितने भी लोग हैं आयुर्वेद के, सब अंडर क्वेश्चन आ जाते हैं. और अब हम जवाब देते फिरते हैं फिर. और हमारे विरोध में तो है ही हैं MNCs और ये इस तरीके के लोग. टाइम्स ऑफ इंडिया के अहमदाबाद एडिशन ने भी कुछ छापा था इसी तरीके से. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिपोर्टल किया था और उन्होंने फिर इसको विड्रॉल किया. हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर परसों यही लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को यही रिक्वेस्ट की, योर लॉर्डशिप, हियर इज ए नीड ऑफ योर अटेंशन, रिबटल और इग्नोर. लेकिन फिर वही अच्छा प्रश्न कि ऐसा लोग करते क्यों हैं. और यदि मान लिया कि लोग ऐसा करते हैं तो हम क्या करें? कैसे हम समझाएं उनको कि ऐसा न करिए? तो मित्रों, ये बात भी बहुत पुरानी है. 2011 में हुआ ये कि ये समस्या चल रही थी और अच्छे से चल रही थी, और इतनी तेज़ी से चल रही थी कि गवर्नमेंट इस पर सोचने लगी और WHO सोचने लगी. तो मैं पहले से ही कहता हूँ कि बहुत मैं स्पष्ट हूँ कि नथिंग आई एम सेइंग बिफोर यू
in my self-appreciation, but I am putting the fact before you very humbly, very politely to make you aware. This is the publication which is now on the screen, Development of Consumer Guidelines for Appropriate Use of Ayurvedic Medicines, Need of Hour. Writer is, it is under the Moksha publication. Writer is I myself and one fellow of this project, Neetu Singh, and the then joint advisor of the Ministry of Ayush, Dr. D.C. Katoch. It was a project sanctioned by the WHO under the APW scheme, and we worked out it on about 1 year. And Professor Jayadevan, who is now principal of Kerala, Professor Asmita Vele, who is now director research at the DY Patil, and Professor Anup Thakur, who is now director ITRA, and Dr. D.C. Katoch sir, and I myself, we 5 people, and we surveyed, this research fellow surveyed many people, and we found it that there is no awareness among the people how to use these Ayurvedic medicines which were once prescribed. So this project was given to me, and we conducted with all the help of these experts. We submitted report to the WHO in the December 2012, and then Ministry of Ayush, yes, it was the December 2011 we completed the project, and technical report was submitted to WHO in July 2012, and in March 2013 Department of Ayush, Government of India taken it for the publication of this report, but anyhow it is I don't know really it has been published or not. But if you see this publication, and you all Ayurvedic scholars whatsoever, either you are a student or PhD or a scholar or the teacher, I request you, I suggest you just go through this write up. It is freely available into the International Journal of Researches in Ayurveda Pharmacy, July volume is July-August 2013. And of course, if you see and go to all these things, the remedy to check inappropriate use of medicine, and these all data are here, that how these things are propagated in the society, and why society is not listening, and why society is not serious about the Ayurvedic medicine, about their appropriate use, about the amount, about the intake, and how they are taking it very casually. And therefore these things are happening which should not be, and Ayurveda is getting blamed. See here, cause of inappropriate use of Ayurvedic medicines. Here is the line: the use of too many medicines per patient, polypharmacy, failure to prescribe in accordance with the classical clinical guidelines, inappropriate self-medication, often of prescription-only medicines, lack of access to standard Ayurvedic medicine all over the country and across the globe. Inappropriate doses may result in the lack of efficacy generally and serious side effects in some cases. What is happening in the Satara? And inappropriate use and overuse of medicine results in all these things too: wastage of resource and often out of pocket payment and to the life. This is the case of Satara. And if you go through this Ayurvedic dosage form and intake, primary dosage form, secondary dosage form, then here the summary guidelines, common guiding principle. Yeah, you should, I invite all of you, all scholars, to go through this. The consumer of Ayurvedic medicines are advised to consult only those physicians of Ayurveda who are legally allowed to practice Ayurveda as per the law of respective country, because it was the project of WHO. So it is having some global test. So what we are doing here, even in our origin country India,
How many people are taking Ayurvedic medicine after consulting a legally qualified Ayurvedic practitioner? What is the ratio? Everyone is an Ayurvedist, everyone is doctor, yeah, even allopathic doctor. हाँ, सब कोई अपने अपने हिसाब से व्याख्या करके और लिए जा रहा है। लेकिन अब क्या करें, हम लोग तो वही गाइडलाइन बना सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोगों का हिस्सा है। देखिए, कंज्यूमर शुड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग द मेडिसिन। अब ये सतारा में जिन लोगों ने पिया, किस लिए पिया, क्या लिया था, कहाँ से लिया था, कौन बताया था, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर उसमें सम्मिलित था भी कि नहीं था, ढेरों प्रश्न है। लेकिन हेडिंग अखबार में निकल गई कि आयुर्वेदिक डिकॉक्शन पीने से 2 मर गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अखबार में ऐसा दिखा दिया गया। और सारे लोग जो हैं, जितने भी, चाहे वो इंडियन ओरिजिन की एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे मतलब मैन्युफैक्चरर्स हो, सिप्ला हो, कैडिला हो, चाहे रोस्ट हो, चाहे जेरो, कोई भी एमएनसीज हो, अब वो सर्कुलेट हो रहा है, ग्लोबल, वायरल। हाँ, अब देखिए आप आगे तीसरा पॉइंट क्या हम लोग लिखते हैं। मतलब मैं जब हम कह रहा हूँ तो मैंने जितने एक्सपर्ट्स का नाम लिए हैं, 5-6 सब हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड बाय GMP certified companies as well as standard and the premium brands of Ayurvedic medicine approved by the agencies like Quality Council of India। चलिए, अब तो देख ही रहे हैं लोग। Consumers are encouraged to see and verify manufacturing date, expiry period and comparative cost economy of same medicines of different manufacturers. Listen, this is very important. Yes, it is really very important. जब हमें दवा दी जाती है, तो जब हम दवा खरीदते हैं तो 2-4 मतलब 10% लोग उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम में से सबको देखना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अभी थोड़ा लीक से हटके मैं बताऊं, स्पेंसर, बहुत बड़ी मुकदमा नहीं होगा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। स्पेंसर, ठीक है ना, स्पेंसर में शॉपिंग करने जाते हैं, वो ढेर सारे ऑफर्स देते हैं। उन्होंने 5-5, 6-6 नमकीन का एक गट्ठर लगाया और कहा कि इस पर इतनी ऑफ है, इतनी ऑफ है, इतनी ऑफ है। ओके साहब, ह्यूमन साइकी, अरे ऑफ मिल रहा है यार, ले लो, चलो ठीक है। और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो ये सैंपल की दवाएं आती हैं, उनकी भी एक, जो आपको पहुंचाते हैं लोग, उनकी भी एक्सपायरी पीरियड बहुत नज़दीक होती है जो डॉक्टर्स को देते हैं। लेकिन ये 2 बातें मैं मिक्स कर रहा हूँ, एक तरफ मेडिसिन, एक तरफ फूड। चलिए साहब, उठा लाए ऑफ में, 50% ऑफ में 6 नमकीन के पैकेट, अलग अलग वैरायटी के, एक कंपनी के, बिकानो या हल्दीराम। और जब आ करके रखा, देखना, खोलने देखा तो पता चला कि सबकी एक्सपायरी पीरियड में मात्र 2 महीने बाकी थे। और हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी आ गया है, डिपार्टमेंट में वो रखते हैं कि भाई कोई आएगा तो उसके चाय के साथ वगैरह दी जाएगी। तो एक हमारी PhD स्कॉलर हैं अपर्णा सिंह, जो कि फूड और न्यूट्रिशन से ही हैं, तो उस पर बड़ा ध्यान रखती हैं। तो उन्होंने घोषणा की कि सर ये सब एक्सपायरी डेट हो गई हैं, क्योंकि उनको लाए 3-4 महीना हो गया था। ठीक है, हम तो ऑफ में उठा के लाए थे, तो वो सब एक्सपायर्ड था। तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए। और फिर अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो सारा का सारा जो ऑफ का नमकीन था वो ऑफ करना पड़ा, फेंका गया, क्योंकि किसी को खिलाया तो जा नहीं सकता। तो ये एक चीज़ आती है कि जब आप मेडिसिन खरीद रहे हो या इस तरीके का जो कुछ भी ऑफ़र देख रहे हो ना, खाने पीने की चीज़ों में, मार्केट में, और खूब बड़ा बड़ा ऑफ़र आ रहा हो, खूब ज़्यादा ऑफ़र आ रहा हो, तो समझ लीजिए कुछ है, और उसकी एक्सपायरी पीरियड देख लिया करिए। आगे चलते हैं, चलिए। फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूमर्स आर सजेस्टेड टू परचेज दीज मेडिसिन ओनली फ्रॉम रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। चलिए, बड़ा लंबा पेपर है, इस पर बहुत आप खुद पढ़िएगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन अभी आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि गाइडलाइन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होना चाहिए।
consumer is encouraged to inquire the following point from the physician related to the consumption of the medicine. आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। हालांकि क्या है, भीड़ है, डॉक्टर साहब लिख दिए और वो कंपाउंडर जो है डिस्पेंस कर रहा है वो बताता भी नहीं है। लेकिन क्या क्या पूछिए, टाइम ऑफ द कंजप्शन पूछिए, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इंटेक ऑफ फूड पूछिए, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट पूछिए, पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग हर्ब इंटरेक्शन पूछिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है एक जगह, हेडिंग तो भले उन्होंने आयुर्वेदिक डिकॉक्शन की दे दी, लेकिन अगली न्यूज़ में लिख रहे हैं कि दिस मे बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग बिकॉज इन द नून दे हैव जस्ट टेकन सम मराठी डिश, पोहा पूरी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कभी खाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा, अभी तो खाया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। और फिर शाम को उन्होंने ढेर सारा नॉनवेज खाया है और उसके बाद ये डिकॉक्शन लिया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक लाइन है कि दैट मे बी द फूड पॉइजनिंग एंड दैट मे बी अ रियल रीज़न। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इज एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन दैट द पेशेंट शुड कंज्यूम ए पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द मॉर्निंग आवर्स, और इट मीन्स दैट द पेशेंट शुड कंज्यूम दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन बिफोर ब्रेकफास्ट। ये सब आप जानते हैं, और ये जानते हैं आपको एक काम और हम लोगों को करना है और बहुत सीरियसली करना है। CMI लिफलेट डालनी है अपनी दवाओं में, CMI कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन, कि कंज्यूमर को उसमें सब लिखा रहे कि काढ़े का अनुपात क्या है, काढ़ा कैसे बनेगा,